So students, uh, moving towards the example, we will see today the example based on unstable connection, and the question is as given in this PDF that ISLB 350 at the rate 49 kilogram per meter beam is connected to ISHB 200 at rate 40 kilogram per meter to transfer the reaction up to 100 kilonewton using M16 bolts. Means diameter of bolt is 16, 4.6 grade and Fe410. So in previous lecture, I have make you understand about what is unstipend connection and which are the steps to design the unstipend connection. Now we will apply this example by using those steps. Okay. So shall we start the example now? Huh. So starting with that. First, design of unstipend connection. The main purpose of unstipend connection is the check for shear and check for moment. What? Check for moment and shear. Shear it is known as V and moment it is known as M, denoted. Okay. So it means that we have to find moment and shear both. So first of all, we will go to moment. The equation of moment is equal to R into B2 by B1 into B2 by 2. So for calculating moment, we need the value of B2, B1, R we have given 200. Okay. So for that we have to calculate B2 and B1 both. So what is B2 and what is B1? This both value we will get from the equation of B. So for that we have to find B, and for B we have to design angle or number of poles. Okay. So as per the step, the first step is to write the data. So we have write all the data here. Okay. The another step is to provide the number of poles. So how we will provide the number of poles? Now every time you don't need to calculate the VDSP and VDPB. As I have explained you in the first lecture that to calculate the number of poles, the equation is R upon VDB. Step 1. Number of bolts required. So for that the equation is R upon VDB. Okay. Now R upon VDB in which VDB is equal to smaller value of
VDSB and VDPB. Okay, the smaller value of VDSB and VDPB. Now, not every time you need to calculate the value of VDSB and VDPB. The general value you need to remind. So general value is equal to means like this. The value of VDB. In most of the cases, the value of single tier or value of VDSB is always smaller. So in 99% cases, the value of VDSB is taken for the calculation as VDB. And in single tier, 100% value of VDSB is taken. So remind this box. मैं एक बॉक्स बनाता हूँ उसको आप याद रखें. VDB जब सिंगल ईयर होता है तब, और जब डबल ईयर होता है तब. हम ज्यादातर 16 और 20 ये वाला डायमीटर ही यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए. सो अब 16 लिया तो VDSB की वैल्यू क्या होगी? 29 किलो न्यूटन. You can calculate it by using the value equation of VDSB from page number 75 IS 800 2007. Okay, double here simply multiply by 2, so it will be 58. For 20 mm diameter, this is 16 diameter, this is 20 diameter, 45.3, and for double here it is 90.6 kilometer. This we have calculated first uh, in the first lecture. So above link will make you learn to how to calculate this value 45.3 and 90.6. If you have missed my first lecture, then the above link will take you there and teach you how to calculate the 45.3 value for 20 mm dia and 90.6. Okay, you can get learn from that. आपको वहां से सीखने मिल जाएगा. So now here, first of all, we need to understand that in unsteepened connection, there will be single shear or double shear. Okay, so after knowing that we have to, if we have to use single shear, then the value of VDB will be 29, and if we have to use double shear, then the value of VDB will be 58, because we have given the 16 diameter bolt. So we will take this value only. Okay, so now first of all, how to understand that there is single shear or double shear? For that, I make a figure and make you understand. This is the flange of column. And this is the beam which is connected. And the angle, okay, the bolt will be connected
from angle to flange section like this. Now I am assuming two number of poles. Okay, so the shear plane will be only one. The shear effect will be here, occurs here. So the shear plane will be only one. There will be no double shear because एंगल एक ही साइड कनेक्ट होगा, दूसरी साइड कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तीसरी साइड तो कॉलम का वेब पोर्शन है. क्या है? वेब पोर्शन कॉलम का. तो यहाँ पे कोई एंगल दूसरा कनेक्ट नहीं होगा. मीन्स कि ये प्लेन पे एक ही बार शेयरिंग इफेक्ट होगी इस साइड. तो अवर कनेक्शन विल बी सिंगल शेयर. तो हमने अभी टेबल में देखा कि अगर सिंगल शेयर हो और डायमीटर 16 हो, अपना VDB की वैल्यू क्या आएगी? 29. So the connection will be in single shear. So for 16 diameter board, the value of VDB is equal to 29 kilonewton. ओके, तो ये वैल्यू अपन को मिल गई. कितनी मिली? 29. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? क्या वो 200 ही लेंगे कि उसमें कोई चेंजेस होगा? सोचो, क्या वो 200 ही लेंगे कि उसमें कोई चेंजेस होगा? तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. स्पानिंग 5 मीटर मीन्स बीम का स्पान 5 मीटर दिया हुआ है और उस पर 200 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर किया हुआ है. मीन्स उन्होंने पर मीटर लोड नहीं दिया हुआ है, पर अपन को टोटल बोल दिया है कि यूडीएल के साथ उसका 200 किलो न्यूटन है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके अपन को लोड दिया हुआ है, पर मीटर डिवाइड नहीं किया, पर उन्होंने बोला है कि ये यूडीएल. इट मीन्स क्या कि अपना बीम यहाँ पे है. इट मीन्स कि 29 तो आपको पता चल गया कहां से आया. अब रिएक्शन का क्या होगा कि अपना बीम जो है उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर दी हुई है. ओके, और उन्होंने ऐसा बोला है कि ऊपर यूडीएल लोड जा रहा है, पर उसको पर मीटर नहीं दिया हुआ, उसको मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके किलो न्यूटन में दिया हुआ है. अगर अपना बीम सिमेट्री है, ठीक है, तो हर एक साइड इसका हाफ रिएक्शन ट्रांसफर होगा. तो अपना कॉलम अभी एक ही साइड कनेक्ट किया हुआ है, तो ये 200 का आधा यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये 200 का आधा यहाँ पे ट्रांसफर होगा. तो अपना रिएक्शन कितना होगा? 200/2 मीन्स इट विल बी 100 किलो न्यूटन. Okay, that's why the value of reaction is 100 kilonewton. Okay, so the number of moles. अब आप बोलोगे कि यूडीएल में तो ज्यादातर रिएक्शन कैसे डिवाइड होते हैं कि WL/2, पर आप पहले क्वेश्चन को फिर से देखिए कि उसमें 200 किलो न्यूटन लिखा है. अगर 200 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा होता तो उसे मीटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड/2 करना होता, पर अपन को दिया है किलो न्यूटन में ही वैल्यू, इसलिए उसे डायरेक्ट डिवाइड/2 कर दिया है. ठीक है, तो अपने नंबर ऑफ पोल्स कितना आएंगे? 100 divided by 29. So it will be 3.44 number. अब 3.44 नंबर का तो कोई बोझ होता ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसा अगर आप डिजाइन कर सकते हैं तो बेटर है कि
3 नंबर के करो और दूसरा एक नंबर 0.44 का बूस्ट करो, तो हम उसे राउंड फिगर में लेंगे 4 वैल्यू। और मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप इवन नंबर की वैल्यूज लेना, ऑड नंबर की वैल्यूज मत लेना। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी वैल्यूज लो, ठीक है। सो हम सिमेट्री लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सके, हमें बोल्स के नंबर भी सिमेट्री डिवाइड करने हैं कि 2 इस साइड है तो 2 उस साइड हो गए। अगर आपने 5 ले लिया तो 3 इस साइड 2 उस साइड हो जाएंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि अनसिमेट्री हो गया। तो लोड की वैल्यू है ना, एक साइड ज्यादा चली जाएगी, एक साइड कम चली जाएगी। तो क्या होगा कि एक साइड का बोल्स जो है वो पहले फेल हो जाएगा। मीन्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 4 नंबर्स के बोल को हमें कैसे डिवाइड करना है। तो देखो, ये अपना एंगल है, ठीक है। तो ये 4 नंबर के बोल्स हैं, तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे उसे, 1, 2, 3 और 4, एक लाइन में नहीं लेके, क्योंकि उसे सिमेट्री डिवाइड करना है। कैसे किया है? सिमेट्री किया है उसे, पता चल गया कि कैसे कनेक्ट करेंगे। कॉलम या पीछे की तरफ उसे कनेक्ट किया होगा, यहाँ कॉलम की फ्लेंज है और ऐसे बीम जाएगा, ठीक है। ऐसे बीम जाएगा, यहाँ से ऐसे बीम जाएगा और यहाँ वर्टिकल में कॉलम होगा और इसे बोर्ड से यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हमें ये कॉलम, ये नंबर ऑफ बोल्स मिल गए, तो उसके हिसाब से हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी कि ये एंगल की डेप्थ कितनी होगी। तो अगर हम पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो अपन को उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो एज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू 1.7 d0। d0 की वैल्यू कैसे होती है? तो d0 की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि 10 से 12 तक +2 होते हैं। अगर वो आपके बोल्ट का डायमीटर होता है 10 to 12 mm, देन इट विल बी +1। अगर आपके बोल्ट का डायमीटर 14 से होके 22 तक होता है तो उसमें +2 होते हैं। और अगर 24 से ज्यादा हो तो +3 होते हैं। अभी अपना कहाँ पे है? 16, तो 16 में क्या होगा? +2। तो d0 अपना क्या हो गया? अगर d अपना 16 है, ठीक है, ये d है, d इज इक्वल टू 16, तो d0 इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो 1.7 80, तो कितना आया? 1.7 इंटू 18, तो इट विल बी 30। और पिच डिस्टेंस 2.5 डी, तो क्या हुआ? 2.5 इंटू 16 मीन्स इट विल बी 40 mm। ओके, तो ये लेंथ में देखो, इसके सेंटर से होता है, तो इतना हो गया अपना एज डिस्टेंस, 30, 40 और 30। तो क्या हुआ अपना? 30, 40 और 30 मीन्स टोटल अपनी डेप्थ हो गई 100 mm। और एक बात याद रखो कि इसकी डेप्थ 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। द डेप्थ ऑफ द अनस्टीपन एंगल शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। क्या लिखना है? इट शुड नॉट बी लेस देन डेप्थ ऑफ एंगल शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। अगर आपकी 90 mm आती है तो आपको उसे 100 mm एज्यूम कर लेना है।
और अगर आपकी 125 आती है तो उसे 125 ही लो, पर वो 100 से कम नहीं होनी चाहिए, इतना खास आप ध्यान रखना। अगर आपका नंबर अब वो 6 आता है तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6। आप रो आप रो जितनी चाहे उतनी रख सकते हो, पर कॉलम तो आपको दो ही रखने हैं। ठीक है, तो 1 2 क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री डिवाइड हो, इसलिए। अगर मैंने ऐसे बोला था कि अपन 3 नंबर ऑफ बोल्स ले, तो क्या प्रॉब्लम होगा? 1 2 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कम होगा। तो ये फेल पहले होगा और ये बाद में होगा, तो आपका बीम एक साइड बेंड होने की संभावना ज्यादा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपको 100 mm ये लेंथ हो गई, और ये बोर्ड को सिमेट्री डिवाइड करो। अब एंगल का अपन को एक पोर्शन तो मिल गया, क्या? कि ये 100 mm मीन्स अगर आप जो भी प्रोवाइड करो एंगल, उसकी डेप्थ 100 या तो 100 से ज्यादा होनी चाहिए। पर अपन को जब ISA, जैसे कि एंगल कैसा होता है? एंगल होता है, चलो ये फर्स्ट स्टेप तो पता चल गया ना आपको। अब सेकंड स्टेप क्या है कि अब लेंथ अपन बी की कैलकुलेट करें। अब ये जो विड्थ है वो किसके हिसाब से मिलेगी? वो तो अपन बी कैलकुलेट करेंगे तभी मिलेगी ना। तो बी किसके बेस पे? बी क्या है? लेंथ ऑफ रूट लाइन। और वो किसके बेस पे डिपेंड है? वो 45 डिग्री पे ब्रेक हो तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कितना चाहिए, वही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि बी कैसे फाइंड करते हैं। स्टेप 1, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो ये स्टेप 1 क्लियर। अपने नंबर ऑफ बोल्स फाइंड करना था, नंबर ऑफ बोल्स मिल गए अपन को 4 नंबर्स, और अपन को डेप्थ मिल गई है 100 mm। so now going to the step 2। स्टेप 2 में क्या है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रूट लाइन। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रूट लाइन। स्टेप तो मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिए, तो आज मैं उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं लूंगा, पर अगर आपको वो समझ ना हो तो ये ऊपर जो वीडियो लिंक आ रही है उस पर आप क्लिक करके वो समझ सकते हैं। रूट लाइन उसको डिनोट करते हैं बी, और बी का इक्वेशन क्या था? मैंने स्टेप्स में भी लिखा हुआ है कि बी का इक्वेशन अपना क्या है। बी इज इक्वल टू आर अपन टी डब्ल्यू एफ वाई बाय गैमा एम 0। क्यों? क्योंकि ये जो बी पोर्शन है वो कैसे होता है, यहाँ पे एक छोटी सी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये बीम है। अगर आपने सोचा कि मैं एक कॉलम के साथ एक बीम को कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने कॉलम के साथ बीम को कनेक्ट किया, और आपने सोचा कि मैं एक अनइक्वल एंगल सेक्शन से उसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, एक और खास बात आप ध्यान रखना कि अनइवन कनेक्शन में ऑलवेज अनइक्वल एंगल सेक्शन ही चूज होगा, इक्वल सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी डेप्थ हमेशा विड्थ से ज्यादा ही होगी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि ये बीम को कनेक्ट करना है, पर हमें पता है कि बीम है ना 45 डिग्री से फेल होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर मान लो कि यहाँ से ये 45 डिग्री पे फेल होता है, ठीक है, तो हमें एंगल की लेंथ इतनी नहीं रखनी है, पर यहाँ से इतनी रखनी है। तो हमारा एंगल यहाँ से, पर ये है पोर्शन कौन सा? क्लियरेंस वाला पोर्शन है। कौन सा है? क्लियरेंस वाला पोर्शन सी। तो एंगल हमारा तो शुरू यहाँ से ही होगा ना, क्योंकि उसे
कॉलम की फ्लेंज के साथ भी कनेक्ट करना है, तो क्या होगा, इतनी लेंथ रखनी है अपने विड्थ, ठीक है। तो जो भी बी क्या आएगी अपनी, कि यहाँ से इतनी बी है, तो बी किस पे डिपेंड होती है, एक तो रिएक्शन पे डिपेंड होती है, क्योंकि उसे ट्रांसफर क्या करना है, रिएक्शन ट्रांसफर करना है। तो बी की वैल्यू रिएक्शन पर डिपेंड होगी, और यहाँ पे जो लोड लग रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लोड लगेगा, ठीक है। ये 45 डिग्री पे फेल हो रहा है, तो ये लोड कहाँ पे लगता है, तो वेब पोर्शन में लगता है। तो थिकनेस किसकी आएगी, वेब पोर्शन की। किसके वेब पोर्शन की, बीम के, क्योंकि वो लोड बीम के वेब पोर्शन पे ऑफर हो रहा है। तो थिकनेस ऑफ वेब किसकी आएगी, बीम की। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये थिकनेस ऑफ वेब ऑफ बीम। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ वाई जो होगी आपकी 250 फिक्स, डिवाइड बाय गामा एम जीरो जो होगी 1.10, वो अपने आगे बता दिया है एज पर पेज नंबर 30। ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। So now we have to convert our किलो न्यूटन, रिएक्शन कितना है, 200 या 100 लेना है इसमें, चलो डिसाइड करो। रिएक्शन आएगा 100, क्योंकि अपन ने एक ही साइड ज्वाइंट किया हुआ है। और थिकनेस ऑफ वेब कहाँ से मिलेगी, अपन को स्टील टेबल में मिलेगी। तो ये थिकनेस ऑफ वेब ऑफ बीम, तो अपना बीम कौन सा है, ISLB 350, जिसका वेट है 49 किलोग्राम पर मीटर। तो उसकी थिकनेस ऑफ वेब क्या आएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टील टेबल में। ISLB 350 पे जाना है, ठीक है। MB है, उसके ऊपर ही होगा LB। ISLB 350 यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा देखो, लिखा है 49.5 किलोग्राम वेट है। तो थिकनेस ऑफ वेब लेनी है, तो थिकनेस ऑफ वेब ये हो गई 7.4 अपनी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी थिकनेस ऑफ वेब 7.4। ओके, तो अब उसे कैलकुलेट करके देखो तो बी की लेंथ कितनी आती है, कि मैं उसे वैल्यू पुट ऑन करूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट ऑन करके देखता हूँ। देखो, आर की वैल्यू होगी 100 इंटू 10⁻³ क्योंकि उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को वैल्यू एमएम में लेनी है, ठीक है। थिकनेस ऑफ, क्योंकि ये एफ वाई की वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, इसलिए हमें ऊपर वाले पोर्शन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थिकनेस ऑफ वेब 7.4 mm में है, इनटू 250 डिवाइड बाय 1.10, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, समथिंग 59.45 mm। अब आप जब डिजाइन का कैलकुलेशन करते हो, तो अगर डेसिमल के हिसाब से सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 60 भी आ सकती है, 58 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, 59.0 भी आ सकता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेते हो उस पर डिपेंड है। अगर आप 2 लेते हो या 3 लेते हो, तो वैल्यू सबकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो इट्स ओके। अब बी की वैल्यू अपन को मिल गई, ठीक है। तो ये रूट लाइन की लेंथ अपने कैसे कैलकुलेट की वो पता चल गया। तो नाउ बी की वैल्यू मीन यहां से अपना बी 59.45 का हो सकता है, पर अपना एंगल तो कहां से है, यहां से अटैच हुआ है। तो हमें अगर एंगल की विड्थ चाहिए, तो फॉर कैलकुलेटिंग द विड्थ ऑफ एंगल
इज इक्वल टू बी प्लस सी में लिख सकता हूं। बी प्लस सी, इतना हो गया बी और ये हो गया सी। तो मैंने अगले वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो में, कि सी की वैल्यू अपन को क्या लेनी है। सी क्या है? क्लियरेंस प्लस टॉलरेंस। और ये क्लियरेंस प्लस टॉलरेंस कितनी लेनी है? 3 mm से 5 mm तक दोनों लेनी है। तो मैंने दोनों को 5 mm एज्यूम कर लिया है। तो फॉर दैट आई एम assuming clearance plus tolerance means C is equal to 5 plus 5 is equal to 10 mm. ओके, तो अपना विड्थ ऑफ एंगल कितना होगा? तो विड्थ ऑफ एंगल अपना हो गया 59.45 प्लस 10 इज इक्वल टू 69.45 mm। ओके, अब 69.45 तो कोई एंगल की विड्थ होती नहीं है, तो हम उसे क्या लेंगे? या तो 70 भी ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, पर 69.45 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम स्टील टेबल में देखें तो अपन कौन से एंगल चूज कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं कि स्टील टेबल में कौन सा एंगल चूज किया गया है। हो सकता है, सॉरी, चूज किया गया नहीं, हो सकता है। तो अब यहाँ पे जाइए, अब एंगल पे जाएंगे, अनइक्वल एंगल लेना है। तो ये अनइक्वल एंगल शुरू हो गए। तो ये आई एस ए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंगल में दिखाते कैसे हैं और कैसे अपन चूज करेंगे। एंगल में हमेशा ऐसे लिखते हैं, in angle they always write like this, that ISA 70 by 60 by 50 by 8 mm, जिसमें 70 क्या दिखाता है? डेप्थ। 50 क्या दिखाता है? विड्थ। और 8 क्या दिखाता है? थिकनेस। 70 दिखाता है अपने डेप्थ, 50 दिखाता है अपनी विड्थ और 8 दिखाता है अपनी थिकनेस। तो अपन को तो डेप्थ मिल गई है कि 100 तो है ही। विड्थ अपने को कितनी मिली है? 69.45। थिकनेस अपन अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। तो अब इसका मीनिंग ये है कि अपन जो डेप्थ सिलेक्ट करे वो 100 या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। विड्थ सिलेक्ट करे तो उसकी विड्थ 69.45 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। थिकनेस अपन कोई भी ले सकते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कि सी टेबल में कौन सा एंगल है जो इसके मुताबिक हो सकता है सेट। देखो, यहाँ पे आ रहे हैं ISA 100 बाय 65। तो 65 इसकी विड्थ हो गई, वो तो 69.45 से कम है तो वो नहीं ले सकते। और नीचे दिया हुआ है 100 बाय 75। चलो 100 उसकी डेप्थ भी हो गई और 75 अपन को उसका 69.45 से ज्यादा वैल्यू भी मिल गई। तो उसकी थिकनेस अपन ले सकते हैं 10 mm। तो वी आर सिलेक्टिंग द एंगल 100 by 75 by 10 mm. So on the basis of calculation and steel table, so so from steel table, the angle is ISA 100 by 75 by 10 mm. ओके, 100 by 75 by 10 mm अपने एंगल सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जिसकी डेप्थ 100 mm
नीडेड है और 100 जितनी है, जिसकी विड्थ 69.45 नीडेड है और 75 है, मीन्स उसके ज्यादा भी है, और थिकनेस अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, तो अपने साइज ऑफ एंगल तो डिसाइड कर ली। अब साइज में क्या क्या आता है वो दिखा देता हूँ मैं। ये सेकंड स्टेप पता चल गया कि बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये साइज में एक और पोर्शन है जो आपको दिखा देता हूँ, वो किसके हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। फिर स्टेप 3 के आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंगल है अपना। ठीक है, अब ठीक है, ये एंगल है, यहाँ पे अपन ने 4 बोर्ड लिए थे। ठीक है, ये अपन ने ले लिया 100। ये विड्थ ये वाली आएगी, ऐसी नहीं आएगी, ये याद रखना। ये अपन ने ले लिया 75 mm, और ये जो थिकनेस है ये अपन ने ले ली 10 mm। ठीक है, ये अपन ने ले ली 10 mm। तो अब ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला देखो, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये हो गई लेंथ। कि अपन एंगल की लेंथ कितनी रखेंगे, तो वो किसके हिसाब से सिलेक्ट होगा। तो समझ लो कि अगर हम, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव। ये बीम है, ओके, ये बीम समझ लो, और उसके नीचे हम ऐसे एंगल रखेंगे, ऐसे एंगल रखेंगे। ठीक है, ये एंगल इसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एंगल की लेंथ ये पोर्शन में आएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितनी भी ये विड्थ है बीम की, ये बीम का कौन सा पोर्शन है, फ्लेंज पोर्शन है। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज जितनी होगी बीम की, उतनी ही लेंथ एंगल की होगी। उससे ज्यादा हम लेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ये ज्यादा पोर्शन दिखेगा। तो ज्यादा पोर्शन तो हम ले ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे कि सेंटर पे ले ले, तो कैसा दिखेगा, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो अपन क्या करेंगे कि जितनी ये बीम के बेस की यानी फ्लेंज की विड्थ होगी, उतनी अब अपन एंगल की लेंथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को एक्सटीरियर लुक भी देखना है कि अच्छा दिखना चाहिए कनेक्शन। सो इसके हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ एंगल विल बी, क्योंकि यहाँ बीम यहाँ से ऊपर से जाएगा ऐसे, ये बीम यहाँ से जाएगा, तो ये क्या होगा, विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ बीम। और उसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली स्टील टेबल में से। तो यहाँ से बीम जाएगा, तो बीम के यहाँ से यहाँ तक एंगल कनेक्ट होगा, तो इसकी जितनी विड्थ होगी इसकी एंगल की लेंथ होगी। सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट, we can say that the length of angle is equal to width of flange of beam। तो कौन सा बीम है, ISLB 350, तो उसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी है, तो चलो देख लेते हैं स्टील टेबल में से। तो फ्रॉम स्टील टेबल ISLB 350, ओके,
ओके, ISLB 350 49.5, विड्थ ऑफ फ्लेंज ये रहा, कॉलम कितनी है 165 mm, कितनी है 165 mm, तो अपने एंगल की विड्थ कितनी हो गई 165 mm इज इक्वल टू 165 mm। तो अगर अपन को कंप्लीटली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि सो वी हैव प्रोवाइड Indian standard angle section 100 by 75 by 10 mm of 165 mm length। चलो अपन ने कनेक्शन के लिए सेक्शन तो प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब अपन को ये देखना है कि ये सेक्शन प्रिफरेबल है कि नहीं, ओके है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। और वो जो मोमेंट फाइंड करेंगे वो किसके हिसाब से फाइंड करेंगे, अपने रिएक्शन के हिसाब से। और अपन अपने रिएक्शन से हिसाब से जो अपन ने मोमेंट फाइंड की, क्या वो ये सेक्शन रेजिस्ट कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। तो नाउ फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट। तो अभी मोमेंट के लिए अपन को B1 और B2 की वैल्यू चाहिए, तो वो पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्टेप 3 क्या है, कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ बेयरिंग। B1, अगर इसको समझना हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को एक बार आप देख लो। ठीक है, तो B1 का इक्वेशन क्या था, B1 इज इक्वल टू B माइनस TF प्लस RB। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि RB और TF क्या है। तो B क्या था अपना 59.45 था। जल्दबाजी में 69.45 मत ले लेना, वो एंगल की विड्थ है और अपनी ओरिजिनल बी तो 59.45 है। ठीक है, माइनस TF, तो TF क्या आएगा, अब सब कुछ हो रहा है बीम पे तो TF भी किसका आएगा, बीम का ही आएगा। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ बीम और रूट रेडियस ऑफ बीम। ठीक है, अब मैं एक बात आपको समझा देता हूं कि अपना आई सेक्शन ऐसे दिखता है। तो आई सेक्शन में दो रेडियस आएंगे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अपन को कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। यहाँ पे RB आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में ये वाला रेडियस नहीं ले लेना, क्योंकि स्टील टेबल में दो रेडियस देंगे। अपन को ये वाला रेडियस कैलकुलेट करना है और थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये वाली लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ISLB 350 की कितनी है थिकनेस ऑफ फ्लेंज और रूट रेडियस ऑफ बीम। ISLB 350, ठीक है, तो इसकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है 11.4 और रूट रेडियस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग रेडियस यही है, R2 दिया हुआ है और ये R1 दिया हुआ है। तो अभी नीचे के पेज में आएगा जी, ये रहा R1 और R2 है। रूट रेडियस ऑफ टो, अपन को क्या लेना है, रेडियस ऑफ रूट लेना है, ये टो का नहीं लेना है। तो रेडियस ऑफ रूट क्या है, ISLB 350 ये रहा, तो उसका रूट रेडियस क्या है 16, कितना है 16। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी हो गई 11.4 और रूट रेडियस कितना हो गया अपना 16। तो यहाँ पे क्या आएगा TF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो गई अपनी 11.4 प्लस 16। तो अपना B1 कितना आया, उसके हिसाब से B1 आया अपना 11.4 प्लस 16, तो 59.45 माइनस आंसर, तो कितना आया
32.05 mm आया। ओके, गॉट इट कि कैसे अपन को B1 का मिलता है इक्वेशन, या B1 की लेंथ मिली 32.05। नाउ मूविंग फर्दर to calculate the length of B2. तो B2 का इक्वेशन क्या है अपना? B2 का इक्वेशन है B1 प्लस C माइनस TA प्लस RA। ये भी मैंने कल वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। तो B1 कितनी आई अपनी? 32.05। C का मीनिंग क्या है? क्लियरेंस प्लस टॉलरेंस, वो अपन ने 10 लिया हुआ है, माइनस थिकनेस ऑफ एंगल और रूट रेडियस ऑफ एंगल। तो अपन ने जो एंगल सिलेक्ट किया हुआ है उसकी थिकनेस तो अपन को पता है कि 10 mm है, क्योंकि अपन ने एंगल कौन सा लिया था? 100/75/10। तो इसमें ये 10 है, वो क्या दिखाता है कि थिकनेस ऑफ एंगल। ओके, तो अब रूट रेडियस कितना होगा वो अपन देख लेते हैं। तो वो भी अपन को स्टील टेबल में से ही मिलेगा। तो एंगल सेक्शन निकालो अपना फिर से। 100/75/10, तो उसका रूट रेडियस के नीचे के पेज में होगा, यहाँ पे ये 100/75/10, इसलिए ये वाला वैल्यू। रूट रेडियस कितना है अपना? 8.5 लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 8.5। तो अपन ने अपना रूट रेडियस कितना लेंगे यहाँ पे? 8.5 लेंगे। तो अपना रूट रेडियस कितना होगा यहाँ पे? 8.5। तो अपने B2 की वैल्यू क्या आएगी? चलो देख लेते हैं। 23.55। 23.55 क्या आई अपनी B2 की वैल्यू। अब एक बात मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां से आपको मोमेंट से पता चल जाएगा कि आपका इक्वेशन, अरे आपका एंगल ओके है कि नहीं। तो अगर B2 की वैल्यू जितनी आपकी कम आएगी उतना आपका सेक्शन ज्यादा सेटिस्फाई होगा, और जितनी ज्यादा आएगी उतना कम सेटिस्फाई होगा। तो आज चेक कर लेते हैं कि अपना ये सम ओके है कि नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। B2, तो अपन को B1 मिल गया, B2 मिल गया, तो अपन मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो, मोमेंट का इक्वेशन क्या था अपना? फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट, तो M इज इक्वल टू R इंटू B2/B1 इंटू B2/2। तो R कितना था? 100 × 10⁻³ इंटू B2 क्या था? 23.55 डिवाइड बाय 32.05 इंटू 23.55 डिवाइड बाय 2। तो अपने मोमेंट की वैल्यू क्या आई? तो 100 × 10⁻³ इंटू 865.21 है। कितनी आई? 865.21 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया। सॉरी 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 सॉरी,
865.21 न्यूटन इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू एमएमआई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या कि अपना कितना किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया, 0.8 हो गया। तो अब अपन को चेक करना है कि ये वाकई में मोमेंट इतनी अपना सेक्शन रेसिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो कैसे अपन चेक करेंगे, तो एक बार अपने ये मोमेंट एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे याद रखने के लिए। कितनी मोमेंट आई है अपनी, m इज इक्वल टू 8, ओके। और हमेशा याद रखो कि 2 बार वेरीफाई किया जाए आंसर। So now checking. So for checking कौन सा इक्वेशन था अपना चेक करने के लिए, चेक फॉर मोमेंट। एमडी मैंने आपको पीडीएफ में सारे स्टेप दिए हुए हैं, देखो। md is equal to 1.2 ZE Fy by gamma m0। ZE Fy by gamma m0। तो अब यहाँ से अपन को देखना है कि ये अपना सेटिस्फाई होता है कि नहीं। Fy की वैल्यू अपन को पता है कि कितनी है, 250 है। गामा m0 पता है कितनी है, 1.10 है। अब ZE क्या होगा, व्हाट विल बी द ZE। तो ZE मीन्स क्या, सेक्शन मॉड्यूलस। और सेक्शन मॉड्यूलस क्या वैल्यू थी, BD स्क्वायर बाय 6। ZE इज इक्वल टू BD स्क्वायर बाय 6। अब यहाँ पे B क्या होगा और D क्या होगा, तो एक बार आप समझ लो कि ये बीम जा रहा है और ये एंगल है, तो ये बीम मोमेंट कहाँ लगाएगा, एंगल पे। तो एंगल के किस पोर्शन पे मोमेंट लगाएगा, ये वाले पोर्शन पे मोमेंट लगाएगा। तो ये हो गया अपना B, मीन्स द विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ बीम। जो लेंथ है एंगल की वो यहाँ पे मोमेंट लगाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्ट करेगा, ये पोर्शन बीम की मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। तो ये हो गई उसकी लेंथ और ये हो गई उसकी थिकनेस। तो एंगल की जो थिकनेस है वो हो गई डी की वैल्यू, और एंगल की जो लेंथ है वो हो गई अपनी बी की वैल्यू। तो बी क्या हो गया अपना 165, और थिकनेस क्या हो गई 10, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6। तो 165 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 6, तो कितना है 2750। कितनी आई वैल्यू, 2750 mm³ तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करते हैं। 1.2 इंटू 2750 इंटू 250 डिवाइड बाय 1.10। एमडी की वैल्यू कितनी आई, तो इंटू 1.2 इंटू 250 डिवाइड बाय 1.10, सी कितनी आई 750 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। अब अपने को क्या लाना था, md शुड बी ग्रेटर देन m, बट यहाँ तो क्या हो गया, md लेस देन हो गया। मीन्स के अपना सेक्शन मोमेंट देता है इतनी, और अपना सेक्शन या मीन्स बीम जब कॉलम पे ट्रांसफर करता है रिएक्शन, तो मोमेंट इतनी पैदा होती है। तो एटलीस्ट इतना तो रेजिस्ट करना ही चाहिए, पर अपना सेक्शन कितनी रेजिस्ट करता है, ओनली 750। सो हियर md is less than m, so it will be not okay। तो अब उसे ओके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन तो फेल हो गया। तो फेल क्या हुआ, सेक्शन। तो बढ़ाना क्या है, सेक्शन। तो अब कैसे बढ़ाओगे सेक्शन, अपन ने 100/75/10 लिया था, तो उसकी जगह उससे ज्यादा ले लो, 125/75/10 ले लो।
या 150/75/10 ले लो और फिर चेक करके देख लो कि वो ओके होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियसली ओके हो जाएगा, बस उससे ज्यादा कर लोगे या तो थिकनेस ज्यादा कर दो, कि मोमेंट कौन रेजिस्ट करता है? थिकनेस। तो मोमेंट के लिए थिकनेस ज्यादा ले लो, थिकनेस ज्यादा लोगे तो क्या होगा? अगर थिकनेस यहाँ पे मैंने 10 की जगह कितनी कर दी, 12 कर देता हूँ मैं थिकनेस, देखो तो क्या होगा? तो ये हो गया अपना 3960। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3960। तो कितना हो गया? 1080 × 10⁻³ N मीन्स अपन को मोमेंट कितनी करनी थी? इतनी रेजिस्ट करनी थी, उसके जगह भी कितनी कर सकता है रेजिस्ट? 1080। सो एम डी इज ग्रेटर देन एम, सो इट विल बी ओके। तो अब अपन ने जो सेक्शन लिया था 100/75/10 mm, उसकी जगह ले लो 100/75/12 mm। ठीक है, स्टील टेबल में से। अब रूट रेडियस में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि 6 से 12 तक का रूट रेडियस सेम ही है। अब आप ऐसा क्वेश्चन करोगे कि आगे हमने जो रूट रेडियस लिया है वो तो 10 के हिसाब से लिया है, पर 6 का लो, 8 का लो, 10 का लो या 12 का लो, सबका रूट रेडियस एक ही है। ठीक है, तो अपन को सिर्फ थिकनेस चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि मोमेंट कौन रेजिस्ट करता है? ये पोर्शन, और ये पोर्शन में क्या आता है? थिकनेस। अपन ने सिर्फ थिकनेस चेंज की, 10 की जगह 12 ले ली, तो उसका ये आंसर आ गया और पता चल गया। तो अपने मोमेंट ओके है। तो हियर द नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेप फॉर शियर। ओके, मोमेंट में तो पास हो गया, अपने को ज्यादातर डिपेंड किस पे रहना है? मोमेंट पे, शियर पे नहीं। मोमेंट पास हो गया मीन्स इज ओके। शियर का अगर वो पूछे तो ही करना है, वगैरह वरना आप मोमेंट तक करोगे तो भी चलेगा। तो अब अपन शियर का लेते हैं। तो शियर का इक्वेशन क्या है ये देखते हैं। चेक फॉर शियर में लिखा है कि V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू WF into thickness of angle into Fy by √3 gamma m0। इसकी वैल्यू रिएक्शन से ज्यादा आनी चाहिए। किससे ज्यादा आनी चाहिए? रिएक्शन से ज्यादा आनी चाहिए। चलो अपन चेक कर लेते हैं कि अपने इसकी वैल्यू रिएक्शन से ज्यादा आती है कि नहीं। WF क्या था? 165 विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ बीम। क्यों? क्योंकि शियर पोर्शन यहाँ पे रेजिस्ट होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी? यहाँ पे शियर लगेगा, देखो ये कॉलम है, यहाँ पे एंगल है। ठीक है, तो शियरिंग इफेक्ट कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो वो किस पे डिपेंड होगी? उसकी लेंथ पे डिपेंड होगी, ये लेंथ वाली। और यहाँ पे एंगल की जितनी थिकनेस है उस पे डिपेंड होगी। वो यहाँ पे एंगल की थिकनेस यहाँ पीछे भी ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेजिस्ट करेगा वो कौन सा पोर्शन रेजिस्ट करेगा? इतना पोर्शन रेजिस्ट करेगा पूरे फिगर को। तो ये क्या हो गया? एंगल की थिकनेस। एक क्लीन फिगर दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है। देखो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल का इनर पोर्शन। अब मैं इनर पोर्शन भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो
ये जो अंदर का ये थिकनेस वाला पोर्शन है ये पूरा शियर रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे शियरिंग इफेक्ट होगा, कॉलम यहाँ पे अटैच होगा। तो ये लेंथ होगी विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये थिकनेस हो गई इसकी, ये थिकनेस ऑफ एंगल कितनी है, अपने 12 ली थी, चेंज किया था अभी। एफ वाई तो 250 फिक्स है, डिवाइड बाय √3 इंटू 1.10, तो ये कितना हो गया, 165 इंटू 12 इंटू 250 डिवाइड बाय √3 इंटू 1.10, so here it is 260.1 kilonewton which is greater than 100 kilonewton। तो सीयर में भी अपना सेक्शन ओके हो रहा है, सीयर में भी अपना सेक्शन ओके हो रहा है। अब लास्ट स्टेप है अपना, हाँ डिजाइन के सम थोड़े लेंदी होते हैं पर मार्क्स भी इतने मिलते हैं ना अपन को। अगर चेक नहीं पूछे तो ये 7 मार्क्स में सम आएगा, और चेक पूछ लिए तो 12 मार्क्स में आ जाएगा, चेक में कुछ है नहीं। तो लास्ट स्टेप इज check for shear strength of beam, check for shear strength of beam। अब चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम क्या होगा, जो पहले अपने चेक फॉर शियर किया अभी स्टेप 7 में, तो उसमें क्या था, एंगल का था, एंगल अपना शियर रेजिस्ट कर रहा है। तो इसकी फॉर्मूला क्या थी, वेट सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू AV FY बाय √3 इंटू गैमा M0 शुड बी ग्रेटर देन R। इसकी वैल्यू R से ज्यादा आनी चाहिए। तब देखते हैं चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। तो देखो एवी, अब यहाँ पे ये बीम है और ये कॉलम फ्लेंज है, चलो कभी ऐसा हुआ कि टॉलरेंस की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे एंगल कनेक्ट किया गया है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि क्लियरेंस और टॉलरेंस की वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे भी शियरिंग इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो बीम के, ये बीम की शियरिंग हो रही है, तो बीम की कॉलम के सरफेस के शियरिंग हो रही है, तो अपने को चेक करना है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम कितनी है, रिएक्शन से ज्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है अपन ने, एवी, तो ये एवी का मीनिंग क्या होगा कि बीम का वो सेक्शन जो शियर को रेजिस्ट करेगा। याद करो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो वेब पोर्शन है वो शियर को रेजिस्ट करता है, तो वेब की थिकनेस आएगी और बीम की डेप्थ आएगी, क्योंकि आई सेक्शन ऐसे होगा, इसमें फ्लेंज पोर्शन है वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करता है, और ये वेब पोर्शन है वो शियर रेजिस्ट करता है, तो इतना पोर्शन शियर को रेजिस्ट करेगा। तो उसकी डेप्थ कितनी है, ISLB 350, तो डेप्थ हो गई 350, और ये थिकनेस कितनी थी, अपने 7.4 लिया था अभी स्टील टेबल में से, तो इसका एरिया कितना हो गया, विड्थ इंटू डेप्थ, तो एवी कितना हो गया 350 इंटू 7.4, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो गया, एवी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेब पोर्शन ऑफ बीम, एवी इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ वेब पोर्शन ऑफ बीम, क्योंकि वेब पोर्शन रेजिस्ट करेगा, तो कितना हुआ 350 इंटू 7.4, तो 2590। अब अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2590 इंटू 250 बाय √3 इंटू 1.10, तो 340.2,
विच इज ग्रेटर देन 100, तो इसमें भी ओके। मीन्स our example is okay and our selected angle and beam is okay। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नॉट ओके वाला भी आस्क करते हैं, वो लोग एंगल अपने आप से देते हैं। तो आप जल्दबाजी में, अपने स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या होती है कि भाई ये नॉट ओके क्यों आया, ओके ही आना चाहिए, एंगल दिया हुआ है फिर भी नॉट ओके है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसा ही ओके लिख के आ जाते हैं, तो वो कैंसल, वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको नॉट ओके का एंगल दिया हुआ है तो आप 2 बार वेरीफाई करो, और नॉट ओके आता है तो आप नॉट ओके लिख दो और नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना कि आपने जो एंगल सेक्शन दिया हुआ है वो नॉट ओके है और उसे ओके करने के लिए उसे चेंज करना पड़ेगा। तो यू हैव गिवन द सेक्शन, इट इज नॉट ओके। फिर आप फिर से गिनने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको 7 मार्क्स में इतना ही कैलकुलेशन करना होता है। अगर आपको 14 मार्क्स में पूछा है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट अप्रोप्रिएट, और इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट देन चेंज द सेक्शन, तो ही आप कैलकुलेट। पर आपको कुछ ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ एंगल दे के बोला है कि डिजाइन एंड अनस्टिफेंड करेक्शन, नॉट ओके आया तो नीचे स्टेटमेंट लिख देना कि द गिवन सेक्शन इज नॉट ओके, बस इतना लिख के आ जाता। ठीक है, सो फॉर टुडे इतना। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे आस्क कर सकते हो। अब अगले सेशन में अपन स्टीफन कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे दिस इज इट, बाय बाय।